Thank you, Mr. Jamshed Godrej and Mr. Nadir Godrej, for that electrifying start. We're going to try and get that text of that poem so we can tweet it and put it up and share it on all our respective Facebook walls. Actually, the Godrej Good and Green team, wherever you're at, can you all just like wave your hands? Chitranshu, Soumya, Veena, wherever you're at. So everyone, please take a look. Chitranshu, please take a look. This is the Godrej Good and Green team. So just reach out to them during breaks. Where's Veena sitting? Yeah. So reach out to them during breaks and really reach out to them and talk to them. If speakers, you could wave your hands about so we all know who you are. I mean, you'll see them, but there's a bunch of speakers who will be there during different sessions. So just reach out to them, talk to them, and interact with them, especially the students here, Chat with them, ask them whatever you feel like. It's a great opportunity to have all these minds in this room. So with that, we're going to start our first session. It's called The Power of Small, in which we look at how individuals and communities can generate their own solutions for water problems and how they've been doing so for thousands of years. I want to invite Adrian Couton, who will take us through this session. Now, Adrian has been, besides having a delightful French accent and traveling all over the world, burning, all these carbon mines and trying to save the planet, he's been doing really good work. He's the associate partner and the lead of the water and sanitation practice at Dalberg, which is a development consulting firm. Before joining Dalberg, he was the CEO of Nandi Water, one of the largest bottom-of-pyramid water utility facilities in India. And he's also worked as an investor in water ventures, as a manager of the water and sanitation portfolio at the Acumen Fund, and also the World Bank's water and sanitation program. Now he's here in India doing incredible work. So Adrian, come on and conduct the session for us. Everyone knows, I hope you all are tweeting widely and actively, and for all those who are on their way, urging them to come here. Good morning. I have to be frank, the first time I'm on a stage talking after someone who expressed himself in rhymes, that's a little overwhelming, but really, really well done. Not all water conferences are good and green. What I thought really exciting about this conference was the nature of the talks, and when we look at the speakers this morning, I think it's partly striking because you have a succession of speakers working on decentralized solutions. And if we had been at the water conference 20 years ago, I'm assuming we'd have mostly be talking about heavy infrastructure, dams, pipes, and today things are evolving, but I think partly in this conference there is a real focus on those new solutions that are emerging and that are really exciting. And the reason it is exciting is because I think it is a future. Just like we see our own lifestyle evolving towards a wireless lifestyle, I think we see solutions in the water sector evolving towards decentralized solutions where we no longer try to rely on really heavy investments. We no longer try to rely on the quantity, but we just try to be smarter about those investments and how water is being accessed and how water is being used. And I think the first speaker for this morning is partly relevant because with that approach comes also a greater focus on democratic participation. When you start breaking down the control over water resources, the management of water resources, it means empowerment. It means people able to understand what water, the price of water, what the good use of water means, why it matters, what they can do themselves, and how you can take control over your better use of water resources. And so the first speaker this morning is a remarkable person. I was asking Vishwanath this morning if he knew Bhupat, and he said he's a legend. And indeed, he's a legend because he started about 25 years ago a new way to deal with water and really empowered his village. And I think he exemplifies this idea of democratic involvement in dealing with water issues. So I'm going to keep this to that, let Bhupat explain for himself how he has been working on water issues
in his village, and I would like you to give him a warm round of applause. Thank you. नमस्ते। आज हम सुबह यहाँ मुंबई के जो लम्स है गोदरेज इंडस्ट्री कैंपस में पानी से लेके आज यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। गोदरेज परिवार और पानी, रूरल इंडिया में जो गोदरेज परिवार का योगदान है तो कई उनके जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है उसके कारण था, और बचपन से ही गोदरेज और गोदरेज परिवार का नाम रूरल इंडिया में सबको पता था। लेकिन आज यहाँ आने के बाद पानी के साथ भी इस परिवार का बहुत अच्छा योगदान रहा है। आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया भर में हंगर और पॉवर्टी ये दो सबसे बड़े चैलेंज हैं। उसके साथ साथ तीसरा चैलेंज है ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर वाटर सिक्योरिटी। इसे लेकर अभी महाराष्ट्र में करीबन 20 डिस्ट्रिक्ट में ओवर एक्सप्लॉयटेशन और इसके कारण जो वाटर स्केर्सिटी हम और उसका सामना कर रहे हैं। 1972 में महाराष्ट्र में एक सीवियर ड्राउट आया था, उसके कारण महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लॉन्च की थी। उसी के आधार पर ही भारत सरकार ने महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम यानी नरेगा का लॉन्च किया। और 72 के ड्राउट के बाद जो माइग्रेशन शुरू हुआ वो गांव से शहर में 70-30 या 75-25 ऐसा जो रेशियो था, आज वो बराबर 50% अर्बन और 50% रूरल में। एक ही धारावी मुंबई में थी, आज 3 धारावी बन गई। और ये आज का जो 2013 में जो महाराष्ट्र में ड्राउट है, इसके कारण काफी माइग्रेशन हो जाएगा। 72 में माइग्रेशन था, फूड सिक्योरिटी और एम्प्लॉयमेंट गारंटी नहीं थी। और आज का जो माइग्रेशन है वो पीने का पानी नहीं है। अगर इस तरह की हालात रही तो गांव तो बिल्कुल खराब हो जाएगी और शहर भी उसकी जो कैपेसिटी है वो भी खत्म होने जा रही है। तो 2,43,000 पंचायत हमारे देश में, 6.5 लाख गांव हमारे देश में, 640 डिस्ट्रिक्ट हमारे देश में। और इससे लेके ही गांधी जी ने कहा था चलो गांव की ओर। ज्यादातर आबादी और ज्यादातर भूमि गांव में, जहां ज्यादा भूमि और ज्यादा आबादी है वहां एक तो ड्रिंकिंग वाटर, एग्रीकल्चर वाटर, रोड हो, पावर हो, एजुकेशन, हेल्थ, ये अगर सारी सुविधा गांव में रहेगी तो गांव छोड़ के लोग शहर नहीं आएंगे। गांव सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा और शहर भी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन आजादी के बाद जो होना जरूरी था वो नहीं हुआ, और इसके कारण जो माइग्रेशन है कंटिन्यूअसली लोग गांव से शहर हुआ। और इसी को ही जवाब और एक उत्तर देने का प्रयास किया। जिस गांव से मैं हूं, पिछले 23 साल से गांव में काम कर रहा हूं, 21 साल पंचायत का सरपंच रहा हूं, पिछले 2 साल से वुमेन रिजर्वेशन के कारण अभी डेप्यूटी सरपंच, और तय किया है गांव के साथ ही काम करना। जो कॉलेज लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे जॉब की भी थी और अच्छा क्रिकेट भी खेलता था मैं। मुंबई में, पुणे में 2 टाइम्स में नेशनल रिप्रेजेंट किया। जब लास्ट टाइम हम गए जोन विनर होकर ऑल इंडिया चेन्नई गए, तब करीबन 10 यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर इंडिया से। फाइनल में हम दिल्ली के साथ हार गए, नॉट आउट 18 और 1 विकेट मेरा था। सेम डे शाम को एक मैसेज आ गया, मनोज प्रभाकर जो है वो अंडर 20 की इंडिया की टीम का कैप्टन बन के अभी वेस्ट इंडीज टूर पे जाने वाला है।
और मैं सीधा चेन्नई से निकल के मेरे गांव आ गया और गांव की पंचायत में आके सरपंच बन गया। ये अलग दो रास्ते थे। आज मैंने जो क्रिकेट गांव के साथ खेल रहा, वो क्रिकेट भूख, पॉवर्टी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एग्रीकल्चर वाटर, इसके साथ जुड़ के काम किया है मैंने। और जब लास्ट ईयर एग्रीकल्चर मिनिस्टर आदरणीय शरद पवार जी हुरे बाजार आए, जब उन्होंने करीबन 3-4 घंटे तक गांव में घूम के पूरा देखा, तो बाद में उन्होंने एक स्टेटमेंट किया, अगर आज के हालात में आप क्रिकेट खेलते रहेंगे या होते तो आप करोड़ोंपति बनते। लेकिन आपने खुद तो करोड़ोंपति नहीं बन गए, लेकिन गांव को करोड़पति बना दिया। तो सही में आज रूरल डेवलपमेंट के सचिन तेंदुलकर है, ये स्टेटमेंट उनका था। जब ये इसलिए का कहता है तो ये हमारी ग्राम संसद सारे ऑफिसेस इसमें करीबन 1,50,000 का लोकल कंट्रीब्यूशन इसमें, और ये इंडिया की एकमात्र पंचायत रहेगी शायद। सुबह 8 बजे खुलती है, शाम को 8 बजे तक ओपन रहती। संडे, सैटरडे या कोई छुट्टी का दिन नहीं, क्योंकि अभी कंटिन्यूअसली फोर जो है विजिटर्स का अभी गांव में डेली 500-600 पीपल्स एवरी डे विलेज को विजिट करते हैं। करीबन 112-14 कंट्री से लोग विजिट कर गए। अभी लास्ट वीक में करीबन अफ्रीकन कंट्री से 30 कंट्री से लोग गांव में आ गए थे। और जब इतना फ्लो है, इसका कारण है कि जहां एक जमाना था फूड सिक्योरिटी और एम्प्लॉयमेंट गारंटी नहीं थी करके माइग्रेशन था, अभी साउथ अफ्रीकन बर्ड्स माइग्रेट होकर हमारे गांव में आते हैं। और अर्बन टू रूरल करीबन मोर देन 100 फैमिलीज आज शहर से वापस गांव में आ गए। मुंबई करीबन 30 फैमिली मुंबई से वापस गांव में आ गए। 10-12 परिवार ठाणे, कुछ परिवार पुणे से। डेली पर डे 3 लाख लीटर वाटर हम लोग सेव करते हैं मुंबई का। इतने परिवार वापस गांव में आ गए। इसी तरह से अगर प्लानिंग रहेगा तो ये बलशाली भारत का सपना पूरा हो जाएगा। इसलिए हमने जो प्रयास किया, एक गांव से लेके अगर एक गांव सेल्फ सफिशिएंट बनेगा, सारी सुविधा गांव में होगी, तो लोग गांव छोड़ के शहर में स्लम में जाना पसंद नहीं करेंगे। इस तरह से जो प्रयास हमने किया, थोड़ा इसका प्रेजेंटेशन, ये हमारा आइडियल विलेज ह्योरे बाजार है। लीडर सक्सेस स्टोरी जो है वो लीडरशिप विलेज पंचायत की है, डिसीजन ग्राम सभा से, और कन्वर्जन है डिफरेंट स्कीम्स ऑफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर जो गवर्नमेंट नहीं कर सकती वो लोकल कंट्रीब्यूशन और लोकल फ्री लेबर सिस्टम से हम लोगों ने कर दिया है। और 100% हमने गांव में यही लोगों को समझाया कि कोई सरकार नहीं है दिल्ली मुंबई में, हम ही सरकार है हमारे गांव में, और हम हमारे लिए काम करने वाले। क्योंकि ये गांव ऐसा है कि जहां हर 5 साल में 2 साल ड्राउट होता है, और कभी तो 10 साल के बाद एक बार मोर देन 500 mm रेनफॉल होता है। और ऐसे हालात में 200 या 300 मिलीमीटर, इसी आधार पर हम लोगों ने प्लान किया। और आज गांव की हालात इतनी अच्छी है कि जहां बिफोर डेवलपमेंट 830 रुपीज पर कैपिटा इनकम था, आज वहां मोर देन 30,000 रुपीज पर कैपिटा है। आज हमारे ब्रांड से अभी मार्केटिंग का प्लानिंग कर रहे हैं। 50 साल हमारी पंचायत स्थापना को हो गए। अभी जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, मिल्क, डेयरी है, ये सारा बाय प्रोडक्ट करके हमारे ब्रांड से ऑर्गेनिक और बैक्टीरिया फ्री, इस तरह से आगे प्लानिंग हम कर रहे हैं। तो ये पुराना गांव था हमारा। ये हमारे जो बैरन हिलोक्स, वाटर स्केर्सिटी, माइग्रेशन के कारण मड और स्टोन के जो मकान थे वो बिल्कुल गिर गए थे, और रेनफीड क्रॉपिंग पैटर्न था जहाँ बाजरा और स्वीट सरगम एंड ज्वार बस 2 ही क्रॉप है। अगर कोई गेहूं की रोटी खाएगा तो गांव का अमीर माना जाता था। तो इस तरह से विलेज के जो प्रॉब्लम्स है वो 72 से 89 तक जो सामने आ गया। जहां पहले बचपन मेरा गांव में गया,
2 रूम में 4 क्लास चलते थे, एक अच्छे टीचर्स थे, और एक था कि गांव में लिटरेट लोग नहीं थे लेकिन कल्चर थे। अगर किसी की देहांत मृत्यु हो गई गांव में तो शेयरिंग करते थे, चाहे वो गरीब परिवार से हो या बैकवर्ड परिवार से। अगर गांव में कोई क्षण या उत्सव आ गए तो सब एंजॉय करते थे। इस तरह का शेयरिंग उस वक्त गांव में था। सरफेस वाटर यूज करते थे लोग, सारे ग्रीन कवरेज गांव में था, सारे सीजन के फ्रूट्स गांव में मिलते थे। आम हो, जामुन हो, कस्टर्ड एप्पल हो, बेर हो, जो कुछ होगा वो गांव से मिलता था। जब 4 के बाद पढ़ाई की सुविधा नहीं थी तो बाहर रिलेटिव्स के पास जाना पड़ा, और उसके बाद जो पढ़ाई के लिए बाहर गया तो कॉलेज, स्पोर्ट्स, इसके कारण कभी तो साल में एक बार गांव में आया करता था। और जब ईटी के बाद मैं बाहर चला गया तो उसके बाद जो गांव में 89 में वापस 10 साल के बाद आ गया, सिर्फ तो साल में कभी तो आया करता था। जब गांव में आ गया तो गांव के हालात देखिए। बचपन में कितना अच्छा गांव था, कितने अच्छे लोग थे। वही लोग जहां घर घर में दूध था वहां घर घर में शराब आ गई। इसके कारण 1 लीटर लेकर की बोतल में एक लड़की की शादी बनती थी। 1982 में एक मर्डर केस हुआ था। 82 के बाद गवर्नमेंट सर्वेंट जो विलेज लेवल पे काम करते थे, पनिशमेंट पोस्टिंग विलेज बन गया उनके लिए। एक तो खुद वो शराब पीने वाले चाहिए या किसी को पिलाने वाले चाहिए। इसके हालात में जो अच्छे लोग थे वो गांव छोड़ के शहर गए, जो गांव में बच गए बस वो क्राइम रेट इतना बढ़ गया तो ब्लैक लिस्टेड विलेज बन गया। अगर इलेक्शन आ गया 10 या 20 लिकर बॉक्स गांव में छोड़ दे तो बस इलेक्शन खत्म होता था। तो इस तरह से ये गांव की हालात थी। तो ये जो प्रॉब्लम में 89 में जब सरपंच बन गया तो गांव में सबसे ज्यादा सपोर्ट वुमेन्स और यूथ का था। उन्होंने कहा तो एक लिटरेट यूथ है वो तो गांव में आ गया, ये कुछ तो भी इस गांव को विजन देगा और गांव में बदलाव लाएगा। सभी ने सपोर्ट दिया। और 89 में फ्लैग होस्टिंग के लिए जब 26 जनवरी को गांव में आ गया मैं, तब सभी ने कहा कि भाई आप तो लिखे पढ़े हैं, कुछ करो, आप ही बदलाव ला सकते हैं, नहीं तो इस गांव में अभी बिल्कुल कुछ नहीं, सब खंडर बन गया ये गांव, सब क्राइम और इसके कारण परेशानी। तो शुरुआत तो ये लोगों ने प्रॉब्लम बताया। मैंने कहा कि क्या है, तो जो दिल्ली मुंबई में बैठ के जो प्लानिंग चलता है वही प्लानिंग गांधी जी ने पहली आजादी की बात की पहली ग्राम सभा में कहा था। दिल्ली और मुंबई नहीं चलेगा, आज हम गांव में जाएंगे, लोकल जो पीपल्स है उनके साथ बैठ के डिस्कस करेंगे और वहां की नीड्स क्या है, वो नीड्स के आधार पर हम प्लानिंग करेंगे। फिर ब्लॉक को जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट को जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। दिल्ली की सरकार वहां बजट करेगी और बजट के आधार पर वो प्लान बनेगा, स्कीम बनेगी और सीधी वो स्कीम गांव में चली जाएगी। क्योंकि आजादी की लड़ाई में जिन्होंने बहुत कुछ किया है वही लोग जब तक है तब तक इस देश को फ्यूचर है, वरना जो कुछ होगा वो फ्यूचर इस देश के लिए अच्छा नहीं होगा। आज हम वो सब देख रहे हैं। इस तरह से हमने भी ग्राम सभा में नीड बेस्ड प्लान किया और इसके आधार पर जो प्लानिंग हुआ तो आज कोई परेशानी नहीं। मंथली अभी लास्ट 15 दिन में करीब 1600 किलोमीटर का मेरा रनिंग हुआ है। मंथली 2 या 3 स्टेट में जाना होता है। महाराष्ट्र के स्टेट लेवल कमेटी में अभी ये स्टेट लेवल कमेटी का मैं चेयरमैन हूँ, जहाँ पहले अन्ना हजारे जी चेयरमैन थे। 1992 में अगस्त क्रांति की जब गोल्डन जुबली महाराष्ट्र भी मना रहा था, देश भी मना रहा था, तब सुधाकर राव नाईक साहब थे और वह एक स्वतंत्र सेनानी आए थे अच्युतराव जी पटवर्धन। उन्होंने कहा था बहुत कुछ हमारे देश में हुआ, हमारे स्टेट में हुआ, आज जरूरत है गांधी जी का सेल्फ सफिशिएंट गांव का सपना। और वही सपना लेके जो रालेगांव सिद्धि में प्रयास हुआ, क्यों ना हम महाराष्ट्र में रेप्लिकेट करें, और वही प्रोग्राम लॉन्च हुआ और वही प्रोग्राम में 94 में हमारा गांव शामिल हो गया। और जो 5 साल 95 to 2000 ये 5 साल का प्रोजेक्ट रिपोर्ट था, लेकिन नीड बेस्ड प्लान था, राइट रोल ऑफ लोकल पीपल्स, राइट रोल ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज, कन्वर्जन ठीक से था और ट्रांसपेरेंसी प्रोग्राम में थे। इसके कारण 2 ही साल में विद इन 2 years हम लोगों ने पूरा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया और गांव में जो चेंजेस गए 97 के बाद वही रिवर्स माइग्रेशन शुरू हुआ। आज वही कमेटी का मैं स्टेट लेवल कमेटी का चेयरमैन हूँ। हम प्रयास करें अभी महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट में 5 मॉडल गांव कैसे बनाया जाए। इसमें से 12 गांव जो पिछले 10-15 साल से
वाटर स्केर्सिटी फाइट कर रहे थे, वही गांव आज टैंकर फ्री हो गए और काफी अच्छी मूवमेंट आज महाराष्ट्र में चल रही। इससे लेके अभी जो हैदराबाद में एनआरडी डीजी अभी रिसेंटली होरे बाजार रखे गए, उन्होंने कहा एनआरडी अभी गोल्डन जुबली बना रहे, तो किस तरह से, तो हमने अभी एक तय किया है कि हम 50 गांव, हर स्टेट में एक मॉडल गांव, इस तरह से थोड़ा टाइप होरे बाजार और एनआरडी कर रहे। तो इसमें से एक है कि हमारे देश में इतने सारे गांव हैं, अभी ये साल का 31 मार्च तक का बजट हम देखेंगे तो 38,000 करोड़ रुपीस का बजट हमारा नरेगा का है, 79,000 करोड़ रुपीस का बजट हमारा रूरल डेवलपमेंट का है, नियर अबाउट 1 लाख और 25 पॉइंट इतना हिस्सा बजट है। 2,43,000 पंचायत है, 6.5 लाख गांव है और गिने चुने गांव में ही परिवर्तन आ रहा। फंड जो है, फंड फ्लो इंटरनेशनल मॉनिटर फंड हो, यूनिसेफ हो या वर्ल्ड बैंक हो, सारे डेवलपमेंट के फंड्स वही से आ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या है? फंड तो जा रहे हैं, रिजल्ट आउटपुट क्या है? तो हमने यही प्रयास किया, स्पेशल फंडिंग हमारे गांव के लिए कुछ नहीं। अगर सरकार 1 लाख देगी तो 25% ज्यादा का काम हम लोग लोकल कंट्रीब्यूशन और फ्री लेबर सिस्टम से करते हैं। और फीलिंग लोगों में ये है, अभी 15-15 दिन में गांव में नहीं होता हूं और लास्ट 3 ईयर से हम ड्राउट को फाइट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसॉल्ट है। असल में महाराष्ट्र की जियोलॉजी 81.20% बेसॉल्ट है और बेसॉल्ट में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ओनली 2% होती है और इसके कारण ही लोग डीप जा रहे हैं ट्यूबवेल के कारण और ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण अभी मराठवाड़ा में जो परेशानी है वही परेशानी ऑल ओवर महाराष्ट्र अभी हम फेस कर रहे हैं। तो पहला डिसीजन ग्राम सभा में हम लोगों ने जो किया, तो ये प्रॉब्लम गांव में देखो ये ऐसे हालात है और इससे लेके किस तरह से फाइट करना है, तो ये प्रयास किया। आज ऐसा शो मी 1 मॉस्किटो टेक 100 रुपीज, सैनिटेशन का इतना अच्छा काम हुआ है और कोई पंचायत का स्वीपर नहीं है। और अभी 3 साल से, अभी लास्ट ईयर 204 mm रेनफॉल, 2 साल पहले 196 mm, उसके पहले 360 mm, लगातार 3 साल सूखा है, अकाल है, लेकिन आज भी हमारे गांव में एक बार हैंडपंप को आप पंप करोगे तो पीने को पानी मिलेगा, क्योंकि वाटर मैनेजमेंट काफी अच्छा हुआ है। और आज ये गांव बिल्कुल प्लान विलेज बन गया है कि जहां सेल्फ डिसिप्लिन है, क्योंकि हमें तरक्की चाहिए, इकोनॉमिकल चेंजेस आने चाहिए, लेकिन डिसिप्लिन नहीं चाहिए। तो हमने ये किया कि भाई हमें ठीक से जीना है तो डिसिप्लिन की भी जरूरत है। तो हम लोगों ने डेवलपमेंट का मॉडल बनाते वक्त ही डिसिप्लिन का मॉडल बनवाया कि गांव हमारा है, कहीं बाहर से नहीं है, ये हम हमारे लिए काम करें। इस तरह से हमारी पंचायत, स्कूल और जो स्ट्रीट है वो, फिर भी ये 3 साल पहले की फोटोग्राफ्स है, अभी तो सारे रोड ग्रीन है। इस तरह से झील है, एक स्मृति उद्यान है, स्कूल है, क्योंकि 15 मिनट में ही खत्म करना है करके थोड़ा पिक्चर लेके तो ये स्कूल से शुरुआत हुई थी। मैंने देखा कि अगर एक लिटरेट हो जाएगा, एक परिवार लिटरेट होगा, एक परिवार लिटरेट हो गया तो जो पास वाले परिवार है वो भी कहेंगे अरे इस परिवार में एक लिखा पढ़ा बन गया, उसको जॉब मिल गया, हम क्यों ना करें। जहां 89 में हम लोगों ने जो सर्वे किया था उस वक्त खाली 2 आर्मीमेंट थे, 3-4 टीचर्स थे और इंडस्ट्री में इधर उधर काम करने वाले 2-4 लोग थे। अभी 81 प्राइमरी सेकेंडरी टीचर है, 4 प्रोफेसर है, 3 डॉक्टर है, 68 आर्मीमेंट्स है और मोर देन 40 बीफार्म सिविल मैकेनिकल या केमिकल इंजीनियर राजगांव में। इसका कारण हमारी शुरुआत स्कूल से लेके हो गई। हमारा स्कूल खाली लिटरेट करने का प्रयास नहीं करता, मेरिट में लाने का प्रयास नहीं करता, वो कल्चर करने का प्रयास करता है। ये देश हमारा है, ये समाज हमारा है और ये गांव हमारा, ये फीलिंग होता है। इस गांव में एकमात्र मुस्लिम परिवार रहता है, मस्जिद लोकल कंट्रीब्यूशन से बन गई। बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए कम्युनिटी हॉल गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर फंड से नहीं, तो गांव के प्रयासों के बाद जो 2 लाख रुपए का अवार्ड मिल गया था उसमें से बन गया। नीड बेस्ड प्लान है और हमारे गांव में कोई एक भी स्टैच्यू नहीं। आदर्श को हम लोगों ने पिंजरे में बंद कर दिया है। तो गांव में कोई जयंती पुण्यतिथि मनाते नहीं हम लोग। उनके जो विचार थे
वो विचार हम लोगों ने लाइब्रेरी के साथ जोड़ दिए हैं। तो फर्स्ट से लेकर 10th तक या सीनियर के बच्चे अभी एक अच्छी मॉडल लाइब्रेरी हमारी बन गई, क्योंकि केबल नहीं है गांव में और स्टैच्यू नहीं है। केबल की जगह हम लोगों ने ग्राउंड दिया है, अच्छा जिम है, अच्छा ग्राउंड है, और प्रयास है यूथ के लिए, और उसके बाद में जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए भी इस तरह से हम लोगों ने प्लानिंग किया। और उसके कारण अभी स्कूल से 40% स्टूडेंट्स अभी आउटसाइड से पढ़ाई के लिए गांव में आ रहे हैं। फिर भी हमारे गांव में स्कूल के लिए आज भी बिल्डिंग नहीं है, क्योंकि हम बाहर से कोई स्पेशल फंडिंग लेते नहीं। अभी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन सर ने 25 लाख रुपीज उनकी राज्यसभा के सांसद है, उन्होंने कहा कि मैंने सुना है ऐसे ऐसे प्रॉब्लम, तो उन्होंने अभी 25 लाख दे। क्योंकि हमने ये किया, टीचर अपॉइंट करते हैं तो किसी से डोनेशन नहीं लेते। नंबर 2, डोनेशन आपसे नहीं लेंगे, आपको नौकरी से नहीं निकालेंगे, और आपको इलेक्शन कैंपेनिंग में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमारी सारी एजुकेशन सिस्टम इलेक्शन कैंपस में है। मेरिट और इसका क्या है आप सबको पता है। और 3 बातें, एक तो आप शहर से नहीं आएंगे, गांव में रहेंगे। नंबर 2, 11 से 5 के बाद भी सोशल कुछ है तो वहां आप काम करेंगे। और लास्ट है, टीचर के संगठन के आप मेंबर नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारे देश में जो संगठन इतने मजबूत हो गए और गुणवत्ता उसकी जो हालात है वो सारी बिगड़ गई। और सर्व शिक्षा अभियान तो आगे आने वाले 50 साल में 100 साल रूरल इंडिया को बहुत दूर छोड़ देगा, क्योंकि एक एजुकेशन हायर एजुकेशन ऐसा है वो करीबन 500 इयर्स आगे है, और गांव की पढ़ाई की हालत ऐसी है। टीचर मीटिंग में है, लेडी टीचर मिड डे मील में है, और अगर कोऑपरेटिव बैंक का कोई नेता है तो हमेशा वो एब्सेंट है। तो इस तरह से गांव की हालात है। तो हमने ये प्रयास किया, तो अभी 40% स्टूडेंट्स आउटसाइड से पढ़ाई के लिए हमारे गांव में आते, और बहुत सारे प्रयास हम लोग स्कूल से करते। तो ये पहले 5 प्रिंसिपल थे, श्रमदान, बैन ऑन ग्रेजिंग, बैन ऑन ट्री फिलिंग, बैन ऑन लोकल लिकर प्रिपरेशन ड्रिंकिंग, और फैमिली प्लानिंग। अभी फैमिली प्लानिंग के ऊपर कोई बात नहीं करता। एक बार ये परेशानी हो गई इंदिरा जी को, और उनकी सरकार चली गई, तो उसके बाद किसी पार्टी के नेता ने फैमिली प्लानिंग के ऊपर बात नहीं की। और यही हमारे देश के सामने सबसे बड़े मुसीबत आज आ रही है। तो हम लोगों ने गांव में पहला प्रयास ये किया। आज महाराष्ट्र का पर्व देखो, 1000 के पीछे 10-11 में 835 था, 11-12 में 875 होगा। हिवरे बाजार जो गर्ल चाइल्ड बर्थ रेट है 10-11 में वो करीबन 17 जन्म थे, 17 में से 10 लड़के थे और 7 लड़कियां थी। 12-13 में 17 ही है, 17 में से 10 लड़कियां हैं और 7 लड़के हैं। तो इसका कारण ये है, जब शादी तय होती तब लड़की कहती बिफोर मैरिज HIV टेस्ट हमारे गांव में कंपलसरी है। नंबर 2, शादी के बाद अगर लड़की होगी तो उसको ही जन्म देना, तो शादी की बात आगे जाएगी। अब दूसरा डिसीजन लास्ट ईयर हमने लिया, दूसरी लड़की हो गई तो लड़की का शादी का सारा खर्चा गांव के लोग उठाएंगे। सारे लोग खुश है, अभी क्राइम नहीं है, पुलिस वाले की जरूरत नहीं पड़ती गांव में। आज सारी जितनी भी महिलाएं वो गांव की मंथली ड्रिंकिंग वाटर टैक्स कलेक्ट होता है, पंचायत नहीं करती, सरपंच नहीं करता, पंचायत सेक्रेटरी नहीं, महिला पर मंथ एक साथ बैठती है ग्राम सभा महिलाओं की, और वाटर टैक्स वहां कलेक्ट होता है। दूसरा ये है, हर घर में 2.5 रुपए में 500 लीटर पानी सूरज ऊपर आने के पहले ही घर घर में जाता है। और महाराष्ट्र में फाइट कर रहे हैं, मराठवाड़ा में दिन भर महिलाएं एक हंडी लेके घूमती है, फिर भी 10 लीटर पानी नहीं मिलता है। लेकिन हमारे गांव में 2.5 रुपए में 500 लीटर पानी घर में, इसका एकमात्र कारण है महिलाओं को पानी के साथ हम लोगों ने जोड़ दिया। आप कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को है पानी से लेकर। तो इसके कारण महिलाएं इतनी खुश है, बाहर से लोग आते हैं, हमारी लड़की की शादी हिवरे बाजार में ही करवानी है, या हिवरे बाजार के लड़की की शादी मेरी लड़की की शादी करनी। तो अभी हमारी लड़की इतनी स्ट्रांग बन गई
लड़का नहीं देखने आता, लड़की देखने के लिए आती है। ये इस तरह से ग्राउंड लेवल चलती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट वाटर ऑडिट, क्योंकि पानी का मिसयूज, उसके कारण पंजाब हरियाणा की सिचुएशन, वाटर ड्रेन करने का प्रयास करना पड़ता है। महाराष्ट्र का शुगर बेल्ट अभी इतना खतरे में है, सभी सलाइन वाटर हो रहा, और वहां की परेशानी अलग है। और जहां 52% महाराष्ट्र की लैंड जो है वो रेनफील्ड है, और वहां की परेशानी अलग है। तो हमने वाटर ऑडिट किया, तो स्कूल के बच्चे जो 1000 हेक्टेयर टोटल एरिया है, उसमें 3 वाटर शेड है, हर एक वाटर शेड में रेनगेज है और कुछ 6 ऑब्जर्वेशन वेल्स है। वहां बारिश शुरू हो गई, वाटर डेप्थ हमारे पास होती है, स्कूल के बच्चे वो मेजरमेंट लेते हैं कितना मिलीमीटर रेनफॉल हुआ और मंथली कितना mm है और वाटर टेबल कितना ऊपर रखा है। बारिश खत्म हो गई, वाटर लिफ्टिंग शुरू हो गई, तो उसके बाद वाटर लेवल कैसे नीचे जाती है वो देखते हैं। तो अभी इसको लास्ट ईयर जब 10 मार्च को और ग्राम विकास मंत्री जी जयराम रमेश साहब हिवरे बाजार आए, 2 मार्च में अफ्रीका और आशियाई कॉन्फ्रेंस की एक दिल्ली में मीटिंग थी, वहां एक मेरा प्रेजेंटेशन था। उसके बाद उन्होंने कहा सरपंच जी मैं अभी हिवरे बाजार आना चाहता हूँ। साहब आप जो कहेंगे, अगर आपका टाइम नहीं पूछने, आप जो टाइम लेंगे भाई। तो 10 मार्च को आए थे, एक डिसीजन लेना पड़ा कि आज रबी क्रॉप के बाद कोई फसल नहीं उगाएगा, नहीं तो हिवरे बाजार में ड्रिंकिंग वाटर के लिए, पीने के पानी के लिए टैंकर की जरूरत हुई। तो मुझे डर था, पिछले 30 साल के बाद लगातार 2 साल अकाल की सिचुएशन थी, अगर लोग नहीं मानेंगे तो हिवरे बाजार के ब्रेकिंग न्यूज बनती हिवरे बाजार में टैंकर, क्योंकि निगेटिव जो है उसकी ब्रेकिंग न्यूज हमारे देश में चलती। तो इस तरह से जो हुआ, तो जब गांव में सारे लोगों ने मान लिया नहीं करेंगे, तो किसी ने पूरा पानी कुएं में था, जो 95 में 90 ओपन वेल से, तब मई एंड को 80 से लेके 120 फीट वाटर लेवल थी, और आज 294 ओपन वेल्स गांव में, और 10 फीट से लेके आज 10 फीट से लेके 30 फीट तक वाटर टेबल है हमारे गांव में। और मई एंड को आ जाएंगे तो आपको तैरने को भी पानी मिलेगा। ऐसा 204 mm में भी ये हालात हो सकती है, और ज्यादा नहीं तो 1 करोड़ रुपीस का जो ओनियन है हम लोगों ने अभी तक बेचा है रबी और खरीद में। डायरेक्ट हिवरे बाजार से अभी ओनियन बेंगलोर जाता है। विश्वनाथ जी आप भी हमारा ओनियन खाते हैं, टाइप किया वहां के कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केट कमेटी के साथ, तो 2204 mm में ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम नहीं है, और रबी और खरीफ का क्रॉप भी मिल गया है। सारे लोग खुश है, हम खुशी से अभी हम ड्राउट के एरिया में जो ब्लॉक्स है, डिस्ट्रिक्ट है, वहां गांव के वुमेन्स यूथ सब अभी घूमने जाएंगे, उनको समझाएंगे डरो मत और रोना मत, सामना करो। तो इस तरह से उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए इसका एकमात्र कारण है ये वाटर ऑडिटिंग। वाटर ऑडिटिंग के कारण आज हमारे पास कोई परेशानी नहीं। अगर 100 mm रेनफॉल है तो ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम सॉल्व होता है, 200 है तो खरीफ का क्रॉप, 300 है रबी क्रॉप, मोर देन 300 तो समर सीजन का चौथा क्रॉप हम आराम से ले सकते हैं। ये कुछ टोटल जो बैन, ट्यूबवेल बैन कर दिया, दे यूज ओनली फॉर ड्रिंकिंग वाटर, नॉट अलाउड फॉर एग्रीकल्चर यूज। उसके बाद जो है जो पेड़ रूट से जो 5-6 प्रिंसिपल्स है, इस तरह से हम लोगों ने डिसीजन और लिख किया। और एक विलेज मैप 1000 हेक्टर, डार्क जो है ग्रीन फॉरेस्ट लैंड है, और डार्क जो है विलेज ग्रेजिंग लैंड है, और येलो कलर जो है इंडिविजुअल येलोक्स है। और ये ड्रेनेज एंड ट्रीटमेंट और सारा काफी इफेक्टिवली किया, ज्यादातर लोकल नॉलेज यूज किया और टेक्निकल नॉलेज जोड़ दिया, और इसके कारण रिजल्ट अच्छे। तो ये चेंजेस हुए। नंबर 1 का, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर सेल्फ स्पॉट के फोटोग्राफ्स बिफोर आफ्टर, इस तरह से नंबर 1 और लास्ट का जो है, तो इस तरह से अभी ग्रीन बन गया बिल्कुल सारे हिलोक्स, कोई परेशानी। और विदाउट पंचायत परमिशन फॉरेस्ट के लोग भी उनके जंगल में नहीं जा सकते। इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन फॉरेस्ट और विलेज पीपल्स का है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का काफी इफेक्टिव काम है। कई जंगल में आग लग गई तो विद इन 10 मिनट्स
100 यूथ जंगल में होते हैं, क्योंकि SMS 1 का काफी अच्छा नेटवर्क हमारे गांव में है और इसके कारण सारे लोग खुश हैं। और ये चेंजेस है, फिर सॉइल फॉरेस्टेशन हो गया, ग्रास डेवलपमेंट हो गया, फिर ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट, एरिया ट्रीटमेंट, फिर वाटर टेबल इस तरह से बढ़ाए। जो बीच में चेक डैम है, तो चेक डैम 2008 में भर गया था वो पानी से, इससे 4 साल से उसमें पानी नहीं आया। लेकिन कनेक्टेड जो लैंड से ओपन वेल से वहां ग्रीन बेल्ट, क्योंकि सूरज से जो इवापोरेशन कंट्रोल करने के लिए सॉइल और वाटर कंजर्वेशन का काम अच्छा हुआ, जिसके कारण स्ट्रक्चर में पानी नहीं दिखता, लेकिन वाटर लेवल काफी इफेक्टिव है। करीब ओवरहेड टैंक्स बन गए पहाड़ों में, ड्रेनेज लाइन में, इसके कारण हम रिचार्ज ठीक से कर रहे हैं और हमें अभी कोई परेशानी नहीं है। तो ये एक प्रयास किया, क्योंकि होरे बाजार एक गाँव में बेसाल्ट पे, और आप अगर मिट्टी को हटा देंगे तो नीचे 2 इंच 3 इंच 4 इंच पे बस आपको बेसाल्ट देखने को मिलेगा। और तीनों साइड से स्लोप है, बारिश हो गई, रन ऑफ काफी था, इसके कारण जो कनेक्टेड विलेज है उनको फायदा होता था। जब अच्छे ट्रीटमेंट्स हो गई, 1 नंबर का जब सॉइल कंजर्वेशन स्ट्रक्चर भर गया, 500 mm रेनफॉल हुआ था, उसी वक्त डाउन स्ट्रीम में और कुएं में उतना ही पानी मिला जितना 100 mm में मिलता था। और जब स्टडी किया मैंने, तो बेसाल्ट को किस तरह से हम क्रैक करेंगे, आर्टिफिशियल एक्वाफर ब्लास्ट का जो प्रयास हमने किया, लोकल नॉलेज हमारा था, सरफेस वाटर हम लोगों ने आर्टिफिशियल एक्वाफर क्रिएट करके वो सरफेस वाटर अंदर छोड़ दिया। ये ऑपरेशन बहुत कंट्रोल हुआ, इसका इतना अच्छा फायदा हुआ। 2003 में जो ड्राउट था, उस वक्त नीचे कुएं में पानी नहीं था, वह परेशान थे लोग, और उसके बाद में जब ये प्रयास हुआ तो आज हैंडपंप को भी पंप करने की जरूरत नहीं होती। जुलाई के बाद में नवंबर एंड तक ऑटोमेटिकली फ्लो चलता है। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रयास किया। अभी ये हमारी सीड बैंक है, स्कूल में एक अच्छी नर्सरी है, उसको रान मेवा अभियान कहते हैं। जो मेरे बचपन में मैंने देखा था वही आज गांव में सारे प्रकार के फ्रूट से, आज जंगल से, नदी किनारे से और किसानों के फार्म से मिलते हैं। इस तरह से प्लेटफॉर्म है। स्कूल में बैक साइड में 100 फीट वो डेप्थ है, बच्चे जहाँ बच्चे अप एंड डाउन हो गया, टंकी में पानी चला जाता है, टंकी का पानी गार्डन को, टॉयलेट को यूज होता है, बच्चों को भी एक्सरसाइज होती है और उनकी परेशानी भी दूर हो जाती है। पानी में जाकर इस तरह से बन गई। तो ये डेवलपमेंट पैटर्न देखो आज ओनियन है, पोटैटो है, हॉर्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, और वो 100 यूज करते हैं लोग। फ्लड इरिगेशन नहीं, अभी उनको तो आदत हो गई, पहले हमने बयान किया था मार्च अप्रैल और मई में, तो आज वो कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं और इसका काफी अच्छा रिजल्ट भी यहाँ कुलकर्णी जी है, जे इनका भी ड्रिप हुआ है। लेकिन हम जेन इरिगेशन का उस वक्त डिस्कशन किया था, थोड़ा जैसा टाटा ने नैनो मॉड्यूल दिया ना, ऐसा ड्रिप में भी नैनो मॉड्यूल की जरूरत है, क्योंकि 81% अभी 2 एकड़ के अंदर फार्मर है हमारे देश में। अगर पॉवर्टी तो इतनी बढ़ रही तो उसको उसका मेंटेनेंस हो ठीक से नहीं। तो हम इजराइल को तो जाते हैं, देख के आते हैं, लेकिन इजराइल तरह का प्लानिंग हम यहाँ नहीं करते। इसका एक ही कारण है कि पॉलिटिकल डिसीजन हो या ब्यूरोक्रेट्स हो या लोकल पीपल्स हो, अगर एक साथ मिलकर करेंगे तो छोटे छोटे किसान जो है वो आसानी से वो ड्रिप यूज कर सकेंगे। इसलिए ड्रिप मॉडल देना बहुत जरूरी है। और ये देखो जो रिवर्स माइग्रेशन है, उसमें से 40 साल पहले गांव छोड़ के गया एक परिवार है, जहाँ बिल्कुल पत्थर ही थे जमीन। पहला लोन दिया उसको, 50,000 रुपए का बैंक का कुआं बना दिया, पानी वाटर टेबल अच्छा था, बिजली चली गई, आज वो 5-6 लाख रुपए की आमदनी पर ईयर उसकी है। लेकिन आफ्टर 1 ईयर वो होटल वोटिंग लिस्ट में आ सकता है और उसको रेशन कार्ड मिल सकता है। आधार कार्ड की जरूरत हम लोगों ने बहुत पुरानी, हमारे गांव में सरकार ने अभी आधार कार्ड लाया, लेकिन हम पिछले 20 साल से आपकी जो आदत है शहर की वो छोड़ के गांव में आना चाहिए। गांव की जो बातें डिसिप्लिन है वो आपने मानना चाहिए, तो बाद में गांव के आप नागरिक बन जाएंगे। और इस तरह से 1.5 एकड़ वाला 1 नंबर का
जो परेशान था, फॉर लेबर था, आज 200 लीटर पर डे मिल्क कलेक्शन है उसका। एक टीचर बन गया, एक लड़का, एक ट्रैक्टर लिया था, 2 साल में लोन फ्री हो गया, और आज ये सारी परेशानी देखो, ये महिलाएं भी करेंगी, जहाँ बैकवर्ड कम्युनिटी की महिलाएं, उनकी जमीन थी, लेकिन हमारे जो कॉस्टॉम होते हैं ना, वो बहुत दिल्ली से लेके मुंबई तक और गांव से सभी पूरे हिंदुस्तान में एक ही होते हैं। वो सीमेंट का स्ट्रक्चर बनवाना था, 1 मीटर का उसका हाइट था और 1 मीटर डेप्थ था, और 2 लाख रुपए में बनवाना था। वहां बिल्कुल नीचे ब्लैक सॉइल की 2-2.5 मीटर नीचे जाना जरूरी था, और एक से कॉस्ट कौन बेयर करेगा? तो गवर्नमेंट नहीं कर सके, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नहीं कर सका, लेकिन लोकल पीपल और आदर्श का मॉडल विलेज में जो भी प्रोग्राम आ गया, हम लोग लोकल कंट्रीब्यूशन कलेक्शन किया, डबल कलेक्शन, और इसके आधार बन गया। अभी वो लोग माइग्रेट गांव से शहर नहीं हो गए मुंबई, वो गांव से आपने खेती में फार्म हाउस बना के माइग्रेट हो गए। अभी वो 2-2 लाख रुपए का प्याज उगाते। और तीसरा ये ट्राइबल की महिला बिल्कुल परेशान, उसका पुराना मकान देखो, अभी एक 5 लाख का मकान बनवाया उसने, अच्छी आमदनी आ गई, एक लड़का आर्मी में चला गया और पूरी परेशानी दूर हो गई। और इस तरह से अभी ग्रेजिंग जो है, तो हमने फुकनी मुक्त अभियान नाम दिया था। फुकनी यानी स्टील पाइप होता है, वो महिला चूल्हा फूकने के लिए यूज करते हैं। काउडंग जो है उसको ड्राई करके बना के वो चूल्हे में जला देते हैं, और ज्यादातर आंख और लंग्स की बीमारी महिलाओं में इसके कारण, वो धुआं है इसके कारण होती है। तो हमने बायोगैस जोड़ दिया उसको। बायोगैस के कारण पाइप हटा दिया, आंख और लंग्स की बीमारी यानी वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, जंगल काटना बंद हो गया, और जो स्लरी है बायोगैस की वो ड्रीप को यूज हो गई, और केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड 75% आज कंट्रोल हो गया। तो इस तरह से अगर सरकार भी वो टंकी वाला बायोगैस जोड़ देंगे तो बहुत अच्छा। आज यहाँ आने का एक दूसरा ही कारण था, हम अभी 50 गांव में महाराष्ट्र में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। या गोदरेज परिवार अगर उस 50 गांव में जोड़ दिया गया, अगर कुछ बायोगैस के लिए सपोर्ट हो गया, तो गांव में भी 50 गांव एक मॉडल गांव बनेंगे, और कारपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी करके आपकी कंपनी का भी एक नाम हो जाएगा, जो लीकेज इंडस्ट्री की टीम यूरे बाजार आई थी, तब मधुर बजाज साहब भी उनके साथ में थे। तो हमने यही कहा था कि हम लोग तो कर रहे, लेकिन जो हम लोग नहीं कर पाते, वो अगर थोड़ा सपोर्ट पे आ जाएगा तो एक मूवमेंट बन जाएगी। क्योंकि सरकार तो देती है 10,000 सब्सिडी, हम प्रयास कर रहे हैं अगर घर घर में बायोगैस चले जाएगा। हम ये कहते हैं सरकार को आप 5,000 चार्ज करो इंडिविजुअल और किसान, और जो कुछ सब्सिडी देना है डिजाइन आपको, और सिंथेटिक टंकी वाला बन गया तो मेंटेनेंस नहीं 25 साल तक तो, और ये हुआ तो आसानी से जंगल काटना भी बंद हो जाएगा, बायोगैस स्लरी के कारण केमिकल फर्टिलाइजर भी कंट्रोल हो जाएगा, और गांव में जो है आसानी से जो फूड आ जाएगा केमिकल फ्री, शहर के लोगों को उनकी सेहत भी खुश रहेगी। बताइए, क्योंकि सरपंच हूँ गांव का, हाथ में घड़ी नहीं होती है। जब ये प्रयास चल रहा है, लेकिन पिछले 3 साल से फाइट कर रहे हैं कि बिल्कुल पॉवर्टी हटा देनी। आज हमारे गांव में खाली 3 परिवार बीपीएल में, क्योंकि सरकार ने हेल्थ कार्ड जोड़ दिया बीपीएल को, और अभी मोबाइल रिचार्ज कार्ड भी जोड़ रहे हैं। तो इसके कारण जिसका प्रभाव वोट बैंक पे ज्यादा है, वो गांव में प्रेशर करता है सरपंच को, एमएलए को या एमपी को। अरे हम पिछले 50 नहीं 10-20 साल से सपोर्ट कर रहे हैं आपको, क्या आप हमारा बीपीएल में नाम भी नहीं डाल सकते? अगर नहीं डालोगे तो नेक्स्ट इलेक्शन में हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। और इसके कारण शॉर्ट टर्म पॉलिसी आ रही है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी हमारे देश में खत्म होने जा रही है। इसके कारण सारे रूरल इंडिया अभी एक ऐसे कतार पे है, वो कभी ऊपर से नीचे गिर जाएगी पता नहीं। तो गांव में यही प्रयास, कोई नहीं आता है, क्योंकि जिसके परिवार में 2 ट्रैक्टर होते वो पॉवर्टी लाइन के नीचे होता है, और ट्रैक्टर का ड्राइवर जो है वो एपीएल होता है, पॉवर्टी लाइन के ऊपर होता है। क्योंकि वो पॉवर्टी और भूख में
उसका प्रभाव वोट बैंक पे नहीं है। और मालूम है सब राजनेताओं को, भाई इसको पैसा है, शराब की बोतल दी तो आराम से वो वोट करता है। और ये चार सबसे इंपॉर्टेंट है। येलो कलर जो हमारी पंचायत है, ब्लू कलर हमारी ग्राम सभा है, और कन्वर्जन है बाकी सपोर्टिंग का। और 73rd अमेंडमेंट के बाद में जो पावर्स पंचायत को आ गए वो कैसे इंप्लीमेंट करना है ये ग्राम सभा तय करती है, और इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी पंचायत की है। इसके कारण कोई परेशानी सरपंच को नहीं, करके पिछले 21 साल से सरपंच था, अभी वुमेन रिजर्वेशन के कारण उप सरपंच है। तय किया है पंचायत के साथ ही काम करना है, क्योंकि हमारा देश गांव में बसा है। गांव में एक मॉडल, मेरे सामने तो कुछ मॉडल नहीं था, लेकिन आज कई सरपंचों को मैं कह सकता हूं कि मॉडल ऐसा है। जो प्रॉब्लम हमने फेस किए, अभी 2 साल के मॉडल हमने दिया है। अलग अलग न्यूज पेपर का, ये पेपर हमारे HIV टेस्ट का जो है, कितनी 5 मिनट में खत्म करना है। आप जब तक नहीं कहेंगे, क्योंकि नेक्स्ट स्पीकर जो विश्वनाथ जी अर्बन प्लानिंग करते, हम विलेज प्लानिंग करते, दोनों मिलके हमारा दोनों का सेशन एक रखा बहुत अच्छा हो। लेकिन हम जो भी गांव में प्लानिंग करेंगे उसका इनडायरेक्ट सपोर्ट शेयर को बढ़ेगा, क्योंकि मुंबई का हम लोगों ने 3 लाख लीटर पानी बचा। और बाकी है सब डेली विजिट्स और इसका तो कोई, अभी तो MDC जो नेशनल डिफेंस कॉलेज है, वैसे करीबन 32 मेजर जनरल आर्मी में कि जो बॉर्डर विलेजेस पे आर्मी ने किस तरह से काम करना चाहिए। तो आज जो जम्मू कश्मीर का पंचायत से लेके जो प्रयास चल रहा है, उनके साथ ऑफिसर्स, पंचायत के प्रेसिडेंट, उनको विजिट हो रही वजह, और किस तरह से अभी नेक्स्ट मंथ में वो SID जो जम्मू कश्मीर है वो आगे 3 जम्मू, श्रीनगर और पूंछ, लेह लद्दाख, इस तरह से रीजनल मीटिंग्स करवा रही है सरपंच को लेके। NCC ये इंडस्ट्री का जो था, ये मधुर बजाज साहब और उनकी टीम आई थी, तभी का एक प्रोग्राम। अभी सब लोग आके हिवरे बाजार का हैंडपंप का पानी पी के जाते हैं। वो उनके साथ जो बिस्लरी वाटर होता है वो छोड़ देते, क्योंकि हमारा पानी ऐसा है पीने के बाद वो पहला सोचता है ये देश हमारा है, दूसरा सोचता है ये गांव हमारा है, तीसरा सोचता है ये समाज हमारा है, इस देश में भूख है, पॉवर्टी है, इसको मिटाना है, सबको अच्छे पीने को पानी देना है, और वो पॉजिटिव बन के जाता है। और ज्यादातर जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स आते हैं ना, क्योंकि जो मसूरी का IAS ट्रेनिंग सेंटर है, साल में एक बार, और उनका ट्रेनिंग पीरियड शुरू हो गया, तो हिवरे बाजार विजिट को आते हैं, तब हम यही बता साहब ये हिवरे बाजार का पानी पी के जाएंगे ना आप, तो आप जहां भी पोस्टिंग पे जाएंगे वहां की भूख और पॉवर्टी मिटा देंगे। इस तरह से डेली विजिट्स और जो है रघुवंश प्रताप सिंह जी, जब नरेगा का डिस्कशन पहला चल रहा था तब मैंने प्रेजेंटेशन दिया कि फर्स्ट टाइम हिवरे बाजार के सोर्सेस EGS ही थे, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के, अभी नो नीड ऑफ नरेगा। इस तरह से उन्होंने कहा फिर भी हम हिवरे बाजार जाके जॉब कार्ड लॉन्च करेंगे, तो वो हिवरे बाजार आए थे। उसके बाद इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर इंस्टीट्यूट की टीम थी, स्टीफन पोर्टर करके, जब तुर्कस्तान में इस्तांबुल में वर्ल्ड वाटर फोरम के लिए प्रेजेंटेशन, तो उन्होंने कहा कि एजेंडा हमारा ये ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट थ्रू पॉवर्टी रिलेशन। तब उन्होंने हैंडपंप में देखा, तब उन्होंने कहा आपने तो प्रूव कर दिया है। ये रेड अथॉरिटी की टीम थी, और जो नाबार्ड की RIDF और कॉमन गाइडलाइन की जो गाइडलाइन बन गई थी, तब उनकी पूरी 5 चीफ जनरल मैनेजर नाबार्ड के करीबन 8 दिन हिवरे बाजार में थे, किस तरह से एग्रो फॉरेस्ट्री, BPL, वाटर कंजर्वेशन का प्लानिंग करना है। ओके। और ये यूनिसेफ की टीम 21 कंट्रीज की टीम थी, लास्ट में जो थोड़ा फंस जाएंगे, ये CP जोशी साहब आके गए थे, तब उन्होंने अरविंद केजरीवाल को, मनीष जी को कहा मैंने गांव देखा, आप तो काम कर रहे हैं ना, तो हिवरे बाजार में फिर वो 2009 में हिवरे बाजार आए थे, फर्स्ट स्वराज वाली फिल्म बन गई थी हिवरे बाजार में, उसका लॉन्चिंग सोनिया जी ने किया था विज्ञान भवन में, वो फिल्म खासियत जब वोट मिलेगा तो इस तरह से। बाकी जयराम रमेश जी आके गए थे। बस ये आखिरी लास्ट ये है, ये हमारे सेंटर पचगनी में है,
ग्रैंडसन ऑफ महात्मा गांधी जो प्रोफेसर राजमोहन गांधी जी, वो वहाँ आए थे और वहाँ मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया था। उसके बाद उन्होंने कहा नेक्स्ट टाइम जब मैं इंडिया आऊँगा तब सीधा हिवरे बाजार आऊँगा। अभी वो लास्ट 27 जुलाई 28 जुलाई को हिवरे बाजार आए थे, 2 दिन गाँव में रहे, काफी अच्छा कहा। आखिर में उन्होंने कहा आज तो है 77 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं, अभी जब कभी स्वर्ग में बुलाया जाएगा मुझे, क्योंकि हमारा ग्रैंडफादर का बहुत जो पुण्य है उसके कारण हम स्वर्ग लोक जा सके। और वहाँ जाके वहाँ का जो डीजी है डायरेक्टर जनरल, उनको यही कहूंगा बाकी एक मिनट के लिए वक्त दे दो, गांधी जी के पास जाना है, उनको कुछ बताना है, एक सपना। उन्होंने परमिशन दिया, वहां गया तो उन्होंने कहा बापू जी आपने जो सेल्फ सफिशिएंट विलेज का एक बलशाली भारत का सपना देखा, अभी रिसेंटली मैं उस गांव से होके आया, मैंने वहां देखा, बस इतना ही बताने आपको आया हूं बस। तो यही मॉडल है कि अभी डरबन जून में जा रहा है, क्योंकि देखो जहां डरबन में महात्मा जी को रेल से धकेल दिया था और उसके बाद उनको ऊंच नीच अमीर गरीब भूख और हंगर का सामने आ गया, बस उससे लेके काम करना है। और लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने जब चंपारण में शुरुआत की तो वही है नील और नील के आंदोलन वही से शुरू हुआ था। तो वही मॉडल डरबन में बताने का अवसर अभी जून में मुझे मिला है कि जब उनका जो साउथ अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज का जो कल्चरल और रूरल डेवलपमेंट का संगठन है, उन्होंने कहा तो हमें भी यही प्रयास करना है, तो आप जून में आ जाए। तो गांधी जी का सपना सेल्फ सफिशिएंट विलेज का वही डरबन में बताने का अवसर मिल रहा। ये महात्मा जी की ग्राम स्वराज की संकल्पना और एक बलशाली भारत का सपना। बस ये छोड़ दो। परिवार ने दिया, बहुत खुश हूँ क्योंकि वो साइड में आते वेस्टर्न हाईवे देखते हैं, मैनग्रोव इतना इफेक्टिव है, शायद मुंबई में यही होगा आपके कैंपस का। और ये सारा ग्रीन बेल्ट मुंबई का यही लंग्स है, इसको बचाए रखेंगे। धन्यवाद। सबको विनती है, मेरे एब्सेंसी में अगर हिवरे बाजार आप आ जाओगे तो 5 ही सवाल उठ रहे। लास्ट 20 ईयर से यह सरपंच है, या हाथ में डंडा लेके बनता है या ग्राम सभा सपोर्ट करके बनता है। नंबर 2, ग्राम सभा सही है या गलत। नंबर 3, जो ट्रांसपेरेंसी है, सोशल ऑडिट जो है, सही है या गलत है। तो ऐसी 3-4 बातें उठाओ।